Today we'll be doing the meaning of foreign exchange market and functions of foreign exchange market. So first of all, what do you understand by foreign exchange market? Okay, foreign exchange market is a market for national currencies of different countries. ठीक है, or you can say it is a market where buying and selling of foreign exchange takes place. ठीक है, so foreign exchange market क्या है? As we know, market means it's a place where things, goods, they are bought or sold. So what is foreign exchange market? Foreign exchange market is a market where buying and selling of what? Of foreign exchange takes place. ठीक है, so it's a foreign exchange market. एक ऐसी मार्केट जिसके अंदर बाइंग और सेलिंग फॉरेन एक्सचेंज की, डॉलर, पाउंड, येन, इन सब की डीलिंग होती है, बाइंग एंड सेलिंग होती है. ठीक है, सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? 3 फंक्शंस हैं. देयर आर 3 फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. नंबर 1 ट्रांसफर फंक्शन, नंबर 2 क्रेडिट फंक्शन, नंबर 3 हेजिंग फंक्शन. सो लेट्स अंडरस्टैंड ट्रांसफर फंक्शन फर्स्ट. यू नो दैट द परचेजिंग पावर ऑफ रुपी इज़ ओनली इन इंडिया. ठीक है, रुपी कैपेबल है चीज़ों को बाय करने के लिए सिर्फ इंडिया के अंदर. ठीक है, इफ़ यू वांट टू बाय थिंग्स इन यूएसए, अगर आप यूएसए में कोई चीज़ को बाय करना चाहते हैं, व्हाट विल यू डू? यू विल एक्सचेंज रुपीज़ विद डॉलर्स एंड दैट एक्सचेंज विल हैपन थ्रू फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. सो परचेजिंग पावर ट्रांसफ़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. नेक्स्ट फंक्शन है क्रेडिट फंक्शन. नेक्स्ट फंक्शन इज़ क्रेडिट फंक्शन. You can take loans in form of foreign exchange. You can take loans in form of dollar, pound, yen from some other countries through foreign exchange market, or you can advance loans in form of foreign exchange to the other countries through foreign exchange markets. ठीक है, this is the credit function. Next is hedging function. Now what is meant by hedging? Hedging means covering of risk. Hedging means covering the risk. So how does foreign exchange market cover the risk? Let's say I am an importer. ठीक है, मैं इम्पोर्टर हूँ. मैंने बाहर की कंट्री से, मैंने यूएसए से लेट्स से $50,000 का सामान मंगवाया. ठीक है, आज की डेट में मंगवाया. ठीक है, और आज की डेट में जो $1 का है रेट, दैट इज़ 50 रुपीज़. मान लेते हैं, लेट्स अज्यूम for easier figures. ठीक है, I am taking easier figures. So as per today, how much payment I do have to make in form of rupees? I have to make 25, 1, 2, 3, 4 and 5. I have to give 25 lakh rupees for getting $50,000 so that I can make payment to USA for the things I have imported. ठीक है, now let's say the transaction, I have to give this payment after 3 months. Let's say the payment for the transaction has to be done after 3 months. ठीक है, now you are very well aware dollar is a stronger currency, so it is quite probable that this will change value. ठीक है, let's say after 3 months $1 will become rupees 60. ठीक है, so how much payment you have to make after 3 months? 50,000 into 60, how many? You have to make payment of 30 lakhs in rupees so that you can get $50,000. ठीक है, if you do on the spot transaction you have to give 25 lakhs. If you do 3 months forward transaction you have to give 30 lakhs. So in order to cover this risk, कि हम टाइम पीरियड की वजह से घाटे में ना जाएं, पहले 25 लाख रुपए देकर तुम्हें $50,000 लेने पड़ रहे थे, अब अगर आप 3 मंथ्स का गैप डालकर फिर लेते हैं तो 30 लाख देने पड़ेंगे. तो इसीलिए एक हेजिंग फंक्शन होता है आपके फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का, जिसमें ये कहा जाता है कि आप आज के रेट में और जो फ्यूचर का आने वाला रेट है उसके बीच का कोई रेट फिक्स कर दिया जाता है. जैसे देखो, आज की डेट में रेट है 50, आने वाले टाइम के लिए आप फोरकास्ट कर सकते हैं 60 हो रहा है, तो रेट कहीं ना कहीं 55 पे फिक्स कर दिया जाएगा. एक रिस्क कवर हो गया ना, एक रिस्क कवर हो गया आपका. स्टिल $1 के पीछे आपके 5 रुपये बचेंगे. तो ये होता है तुम्हारा हेजिंग फंक्शन फॉर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, ऑपरेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. देयर आर 2 ऑपरेशंस or there are 2 situations under which a foreign exchange market operates. ठीक है, spot market and forward market. These are the 2 types of a foreign exchange market, spot market and forward market. Now what is
स्पॉट मार्केट, एज द नेम सेज ऑन द स्पॉट ट्रांजेक्शन्स, आज की डेट पे आज के रेट पे ट्रांजेक्शन कर देना, ऑन द स्पॉट transactions are covered under spot market. It handles on the spot transactions, does not deal in future deliveries. आज से 3 महीने के बाद वाले रेट नहीं बताएगा ये, आज के डेट पे अगर आज $1.50 का है तो बाइंग सेलिंग करेंसी की उसी एक रेट पर होगी 50 पे, ठीक है। रेट ऑफ एक्सचेंज जो डिटरमाइन होता है स्पॉट मार्केट में उसका नाम क्या होता है, स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मार्केट इज़ फॉरवर्ड मार्केट, देखते हैं। इट हैंडल्स ट्रांजेक्शन्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विच आर मेंट फॉर फ्यूचर डिलीवरी, एज आई हैव डिस्कस्ड इन द हेजिंग फंक्शन दैट 3 मंथ्स के बाद का आफ्टर 3 मंथ्स क्या रेट होगा, यू हैव फिक्स इट एज 55। ये इस तरह के ट्रांजेक्शन्स के साथ डील करता है कि तुमने अगर फ्यूचर में बाय या सेल करना है उसका रेट आज ही डिसाइड हो जाता है, ठीक है, रिस्क को कवर करने के लिए। यही होता है तुम्हारा फॉरवर्ड मार्केट, फ्यूचर ट्रांजेक्शन के साथ डील करता है और जो रेट ऑफ एक्सचेंज इसमें डिसाइड होता है इट इज़ नोन एज फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट्स आ जाती हैं, फ्यूचर्स, स्वैप्स, दे आर नॉट इन योर सिलेबस बट जस्ट फॉर योर नॉलेज, ठीक है। सो देयर आर 2 ऑपरेशंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट इज़ अ मार्केट विच हैंडल्स ऑन द स्पॉट ट्रांजेक्शन्स, आज के रेट पे होंगी सारी ट्रांजेक्शन्स। फॉरवर्ड मार्केट आगे आने वाले टाइम के जो रिस्क है उसको कवर करने के लिए आज ही फ्यूचर का रेट बताकर उस पर ट्रांजैक्शन कर दी जाती है, रिस्क को कवर कर लिया जाता है फॉरवर्ड मार्केट के अंदर। ओके, थैंक यू।